Good morning, dear children. Welcome to the class. This is the third lecture of the chapter Federalism. And in this chapter, we are going to talk about how is this federalism practiced in our country. So we will see the live example that how the term federalism is practiced in our country. In last class, we discussed that what are the provisions which talk about federalism in our constitution. So we talked about three lists: union, state, and concurrent list. Now we will look at about that in reality, in practical sense, how this federalism practiced in our country. So there are three examples given here, right? The first one is linguistic state, another one is the language policy of India, and the third one is the relation between the central government and state government. So we will look one by one. So the first one you can see here is the formation of linguistic state. All of you know that when our country got independence, at that time, the states were very less. That means approximately 14 states were there at the time of independence. But later on, there were many new states were added. Now the question is why? Why new states were added? Basically, after independence, there were many demands to form the state on the basis of language. So this was the first real test of federalism, because at that time the central government did not want to divide the states on the basis of language, because the government thought that recently we face so many violence because of the division of the country on the basis of religion. If now we are going to divide the country on the basis of language, there may be a chance of danger on the unity of our country. So initially they don't want to divide our country on the basis of language, but later on the central government agreed to divide it on the basis of language, and there are many states which was formed, like in South India there are many states like Andhra Pradesh, Karnataka, then Maharashtra. These are the states which are formed on the basis of language. So, as we thought that it may lead to disintegration of our country, but एक्चुअली में ऐसा हुआ नहीं, हमारा कंट्री और ज़्यादा मजबूत हो गई. And not only on the basis of language, we divided our country on the basis of culture, on the basis of ethnicity. Look at the example of Jharkhand, Nagaland, Uttarakhand. These are the places. This state was not divided on the basis of language, but on the basis of culture, right? तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेट्स को डिवाइड कर रही है, एंड दे आर गिविंग सम पावर टू द स्टेट्स. यस और नो? सो दिस इज obviously we can say this is federalism. Okay, good. Coming to the next one, look at here. This is the map of India in 1947, right? You will not find the states which is now you can look on the map, right? It will not be here. For example, there is no Karnataka, there is no Tamil Nadu, right? There is no Andhra Pradesh. Look at here. So all these states are formed later on. ठीक है, तो ये वाला पार्ट, हैदराबाद वाला पार्ट जो है ये आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना बन गया. मद्रास वाला पार्ट, दिस बिकम द present day Tamil Nadu, then Mysuru become the Karnataka, right? Bombay become Maharashtra and Gujarat. So there were many new states were formed. So forming a new state, it means that central power is giving some power to the state government. So this is federalism. Okay. Coming to the next one, the language policy of India. All of you know that in India we have different types of languages, and many languages are there. For example, if you talk about India, if you consider all the languages, major or minor languages, you will find more than 3,500 languages in our country, right? So when we got independence, there was a very crucial debate among the leaders that which language should be selected as the national language of our country, right? So many of the leaders wanted to choose this Hindi as the national language of our country, right? So
before we look into that, before you thought about it, that English or Hindi should be the national language or not, you should know the present status at that time of the language. For example, Hindi was identified, right, as a major language, क्योंकि इंडिया में 40% पीपल वर स्पीकिंग इन हिंदी, राइट। तो लीडर्स को लगा कि क्यों ना हिंदी को हम नेशनल लैंग्वेज बना दिया जाए, राइट, ठीक है। तो हिंदी को सबसे पहले जो है ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया आफ्टर इंडिपेंडेंस, बट दिस डिसीजन वाज अपोज्ड बाय द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, बिकॉज many of the people who are living in Tamil Nadu do not know the Hindi, right? वहाँ के लोग इंग्लिश बोलते थे, वहाँ के लोग तमिल बोलते थे, राइट। सो बिकॉज ऑफ दैट यूनियन गवर्नमेंट ने एक नया लैंग्वेज पॉलिसी अडॉप्ट किया। उन्होंने क्या लैंग्वेज पॉलिसी अडॉप्ट किया? सबसे पहले चीज, उन्होंने किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाया। हमारी जो यूनियन गवर्नमेंट थी, दे डिड नॉट डिक्लेयर एनी लैंग्वेज एज द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, राइट। बिसाइड दैट, Hindi and other 21 languages of our country considered as a scheduled language by the constitution। मतलब हिंदी के अलावा 21 और, मतलब टोटल कितने हो गए, 22 लैंग्वेजेस को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल्ड लैंग्वेज का दर्जा दिया गया, राइट। सो इसका मतलब क्या होता है? इन सारे लैंग्वेज जो 22 लैंग्वेजेस हैं, इनमें से किसी भी लैंग्वेज को कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अपना ऑफिशियल लैंग्वेज बना सकती थी। सो द फ्रीडम वाज गिवन टू द स्टेट्स दैट दे कैन चूज एनी लैंग्वेज, राइट, एंड दे कैन मेक that language as their own official language. So if you find in our country, there are many states having different official language. For example, Kannada is the official language of Karnataka, while Tamil is the official language of Tamil Nadu. So this is how the different state have different official language, right? Then of India continue the use of English along with Hindi for official purpose, right? So हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो हिंदी एंड इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बोलती है, राइट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है दैट सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इम्पोज, states have their own freedom to choose their own official language. So this question is very important in this chapter. The question is, what is the language policy of India? Coming to the next topic, look here, these are the scheduled languages of India: Assamese, Gujarati, Hindi, Kannada, Kashmiri, Konkani, Maithili, Malayalam, Manipuri, Marathi, Nepali, Odia, Punjabi, Sanskrit, Santhali, Sindhu, Tamil, Telugu, Urdu. So these are the scheduled languages of India. Coming to the next one, center-state relation. So all of you know that in federalism we have 3 levels of government. One is central government, second one is state government, and the third one is local government. So in this topic we are going to talk about what is the relation between central government and state government, because the relation between these two should be good, otherwise हमारा कंट्री का डेवलपमेंट ठीक नहीं हो पाएगा, ना ही फेडरलिज्म हम कह सकते हैं। अगर दोनों आपस में लड़ाई करें, कैन वी से इट इज अ फेडरलिज्म? नो, राइट। सो सेंट्रल स्टेट रिलेशन में हम देखेंगे रिगार्डिंग द टू थिंग। द फर्स्ट इज टाइम पीरियड बिफोर 1990s, 1990 के पहले क्या हुआ था और 1990 के बाद क्या हुआ, तो देखते हैं। सबसे पहली चीज, यू शुड अंडरस्टैंड दैट आफ्टर 1947 there was only one major political party, that is कांग्रेस, ठीक है। तो कांग्रेस जो थी ये हर एक जगह पर थी, चाहे वो यूनियन गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट में भी कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी का गवर्नमेंट होता था, नॉट ओनली इन द यूनियन गवर्नमेंट बट ऑल्सो इन द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो मेजर स्टेट्स जो थे हमारे कंट्री में, ज्यादातर जो स्टेट्स थे वहां पर कांग्रेस की ही रूल थी। सो बिफोर 1990s देयर वाज नॉट मच प्रॉब्लम, ठीक है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि क्या हुआ उसके पहले, जिस समय जवाहरलाल नेहरू हमारे कंट्री के प्राइम मिनिस्टर थे, उस समय चाहे कोई भी स्टेट आप उठा के देख लो,
एनी स्टेट्स ऑफ इंडिया, उन सभी स्टेट में कांग्रेस का रूल था टिल इंदिरा गांधी, राइट। दैट मीन्स फ्रॉम 1947 to 1977, right? 1947 to 1977. During this period, majority of the states were ruled by Congress, and the union government is also ruled by Congress. Problem started after 1978. What happened after 1978? That in many states, the new political party started emerging. जैसे फॉर एग्जाम्पल भारतीय जनसंघ, विच इज ऑल्सो नोन एज भारतीय जनता पार्टी नाउ, ये एक नई पॉलिटिकल पार्टी थी जो कि फॉर्म हो रही थी, एंड इट बिकम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर डे बाय डे. So what happened during that time? As all of you know that the Congress is in the power in the center. That means यूनियन गवर्नमेंट में कौन थे? कांग्रेस थे, और कई सारे स्टेट में जहां पर बीजेपी थी, राइट. तो ऑब्वियस सी बात है कि जब दो पॉलिटिकल पार्टीज होंगी तो दोनों के बीच जो है एक अच्छा रिलेशन नहीं होता है, राइट. दो स्टेट में किसी और पॉलिटिकल पार्टी का रूल है, यूनियन गवर्नमेंट में कोई और पॉलिटिकल पार्टी है, तो दोनों के बीच का रिलेशन अच्छा नहीं होता है. ऐसा चांसेस होता है, राइट और नॉट. तो पहले ऐसा ही होता था. पहले क्या होता था? There is a provision in our constitution called as Article 356. Article 356, what is Article 356? It is a provision mentioned in our constitution which talks about national emergency. Now the question is, what is national emergency? जब भी कभी यूनियन गवर्नमेंट को लगता है कि हमारे कंट्री की सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, यूनिटी, ये सब डेंजर में है, खतरे में है, राइट. तो ऐसे सिचुएशन में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने यूनियन गवर्नमेंट को ये पावर दिया है दैट दे कैन सस्पेंड ऑल द स्टेट गवर्नमेंट्स, राइट, एंड टेक कंट्रोल ऑफ द होल कंट्री. दिस इज द पावर गिवन बाय द Article 356, right? Okay, 356, 352, these some provisions, you need not go into details, right? दो आर्टिकल हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 352 एंड 356. तो जब भी गवर्नमेंट को लगता है कि यूनियन गवर्नमेंट को लगता है कि कोई कंट्री को खतरा है, किसी तरह की सोवरेनिटी की खतरा है, यूनिटी की खतरा है, राइट, या फिर अगर गवर्नमेंट को लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को सस्पेंड कर सकती है. तो 1990 के पहले कई बार ऐसा होता था कि जब कांग्रेस यूनियन गवर्नमेंट में होती थी तो वो बीजेपी रूल्ड स्टेट को सस्पेंड कर दिया करती थी बाय यूजिंग आर्टिकल 356, बाय यूजिंग आर्टिकल 356. और जब कभी बीजेपी की गवर्नमेंट होती थी यूनियन गवर्नमेंट में, तो कई बार ये क्या करते थे, कांग्रेस की गवर्नमेंट को सस्पेंड कर देते थे. स्टेट गवर्नमेंट जहां पर कांग्रेस का रूल होता था, कई सारे स्टेट में उस गवर्नमेंट को सस्पेंड कर देते थे. सो डू यू थिंक दैट दिस इज फेडरलिज्म? नो, इट इज नॉट अ फेडरलिज्म. व्हाई? बिकॉज व्हाट इज हैपनिंग हियर दैट फॉर दिस पॉलिटिकल रीजन, राइट, some state, some political party is suspending the state government, ठीक है, for their own benefit. So it is not a real federalism. But later on, after 1990, what happened? The Supreme Court intervened into the matter, and Supreme Court ने कहा कि अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट किसी स्टेट गवर्नमेंट को सस्पेंड करती है, then they have to give the reason why you are suspending the state government, right? So slowly and gradually what happened after 1990s, कई सारे चेंजेस हुए हैं इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में. क्या चेंजेस हुए? अब जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में ना सिर्फ कांग्रेस बल्कि बीजेपी भी पावर में आने लगी, एनडीए पावर में आने लगी, राइट और नॉट. यही नहीं, हमारे पूरे कंट्री में अलग अलग स्टेट में अलग अलग रीजनल पार्टी भी बाहर निकल के आई. ये टाइम था कॉलिशन गवर्नमेंट का. इस समय कई सारी स्टेट में कॉलिशन गवर्नमेंट भी बनना शुरू हुआ. कॉलिशन गवर्नमेंट मतलब दो पॉलिटिकल पार्टी मिलके गवर्नमेंट बना रही है, राइट. तो ये जो स्टेट सेंट्रल स्टेट रिलेशन का जो पहले प्रॉब्लम हुआ करता था, ये धीरे धीरे सॉल्व होना शुरू हो गया.
चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कई सारे डायरेक्शन जारी कर दिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि ऐसा गलत है बिल्कुल कि किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को आप सस्पेंड कर देते हो। तो बिकॉज ऑफ दैट स्लोली एंड ग्रेजुअली द रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट improved a lot, right? And nowadays we rarely found that कि सेंट्रल गवर्नमेंट इलीगली या फिर कह सकते हो अनफेयर रूप से किसी स्टेट गवर्नमेंट को सस्पेंड करती है। So look at here, this is the situation showing the time before 1990s कि किस तरह से कांग्रेस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में थी और कांग्रेस की ही पॉलिटिकल पार्टी के कई सारे मेंबर अलग अलग स्टेट को रूल करते थे, ठीक है। और ये स्टेट जो गवर्नमेंट थी दे दैट वर नॉट इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट नहीं हुआ करती थी। क्यों इंडिपेंडेंट नहीं हुआ करती थी? क्योंकि ये भी कांग्रेस के थे और जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी ये भी कांग्रेस के थे, राइट। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो हेड है, कांग्रेस की जो पॉलिटिकल पार्टी का हेड हुआ करता था, दे इफ दे इशू सर्टेन डायरेक्शन टू द स्टेट, ठीक है, अगर कोई डायरेक्शन वो इशू करते थे, कौन? यूनियन गवर्नमेंट, तो स्टेट गवर्नमेंट को उसको मानना पड़ता था। ऑल्दो ये जो पावर, ये जो इस डायरेक्शन इशू किया जाता था वो आउटसाइड ऑफ यूनियन गवर्नमेंट्स पावर, ठीक है। अगर इनके पास वैसा कोई पावर नहीं भी हो तो फिर भी अनऑफिशियली जो कांग्रेस के लीडर होते थे वो अपने स्टेट वाले लीडर को क्या बोलते थे वैसा करने के लिए, तो स्टेट को वैसा ही करना पड़ता था। तो कैन वी से इट इज अ ट्रू फेडरलिज्म? नो। व्हाट इज हैपनिंग हियर? यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट ही डायरेक्ट कर रही है टू द स्टेट गवर्नमेंट, राइट। बट नाउ इट्स चेंज्ड। अब क्या हो गया? ये चेंज हो गया क्योंकि आज की डेट में कई सारे जगह पर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की गवर्नमेंट है और यूनियन गवर्नमेंट में अलग पॉलिटिकल पार्टीज की गवर्नमेंट है, राइट। नाउ द स्टेट गवर्नमेंट इज using their power independently, right? So look at here, next one is, this is Atal Bihari Vajpayee. This picture is showing that what is coalition government. coalition government कैसा होता है? तो देखो, coalition government का मतलब होता है कि कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज मिलके गवर्नमेंट बनाती है। तो देखो ये प्राइम मिनिस्टर हैं अटल बिहारी वाजपेयी, इनके साथ कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, है ना। दीज आर द सिंबल्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एंड ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज मिलके जो प्राइम मिनिस्टर का चेयर है ये बना है, राइट। तो इसका मतलब है कि अगर एक भी पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ से बाहर निकला तो ये पूरी की पूरी जो चेयर है वो खत्म हो जाएगी। दैट मीन्स प्राइम मिनिस्टरशिप अटल बिहारी वाजपेयी की खत्म हो जाएगी। ये 1999 का एक 1998 का ये एक पिक्चर है, राइट। तो आप देखो बगल में आग जल रहा है और ये सारे पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, छोटे छोटे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, दे आर शोइंग एज अ बॉम्ब, राइट। कि अगर किसी में आग लग गया और वो ब्लास्ट कर गया तो पूरी की पूरी प्राइम मिनिस्टर की चेयर खत्म हो जाएगी, राइट। तो दिस इज कोलिशन गवर्नमेंट, राइट। नेक्स्ट, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल टॉक अबाउट डिसेंट्रलाइजेशन। आज के लिए इतना रहता है, दैट्स इनफ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।